I wanted to start class at 6 o'clock today because of festival, but nobody responded when I gave you link, right? I told you to respond soon, right? But I didn't get any response. I got after 6. So that's why I again gave you link for the class, right? It's okay, no problem, but it's okay. So how many of you are doing worship today? Like today? So what about others? I'm doing puja worship after some time. Okay, puja is also doing. Okay, what about Manisha ma'am, Reshma, Madhulika? What about your home? All must be busy. Okay. Am I audible, guys, to all of you? Am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay, okay. Because there is somebody who has very poor network. Yeah, you're audible. Okay, okay, I can see, I can see. Okay, so guys, today I'm not taking grammar class, I'm taking one spoken topic today. It's very interesting, and I would like to start with some vocabularies first. Okay, so Pooja, basically, where are you from? India. I know India. Where in India, like where you were born, Yeah. your native place, Ratlam, Madhya Pradesh. Ratlam, Madhya Pradesh, right? So I can say that Yeah. that's your hometown. Ratlam is your Yes. hometown, isn't it? Okay. So Pooja's hometown is Ratlam, right? Ratlam, Madhya Pradesh, India. Manisha ma'am, you are from Jharkhand, am I right? Or Jhansi? Well, she's not audible. Okay. If you are not audible, guys, you can write. Okay. Ma'am, you are not audible properly. It's okay. Reshma, where are you from? You're also from Madhya Pradesh? Which place? You're also not audible. Madhulika, what about you? I'm from Ambikapur. Ambikapur. And Subhashish is from? Okay, ma'am is from Jharkhand. Okay, ma'am. Okay, okay, okay. Dhanbad. Okay, okay, Subhashish. Okay, okay. So, guys, let me start today's topic. And the topic is my hometown. So, yesterday I gave you one PDF file, PDF material. I hope you all have gone through that. But still, I'm going to explain that. Don't worry about that. Just give me a minute and let me open that form file for you. Okay. अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया अभी तक? मैंने आपको टेस्ट दिया था, मतलब बाकी बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। जिन्होंने नहीं दिया, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आप टेस्ट जरूर दीजिए, है ना? टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है ना? टेस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट, मस्ट। ओके, सो माय फाइल इज ओपनिंग। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, है ना? लेट्स प्रैक्टिस ग्रामर सेंटेंसेस, राइट? ओके, चलिए कैसे बोलेंगे आज दशहरा, आज 11 है। हाउ विल यू से आज 11 है? Today is 11. टुडे इज 11। और क्या बोल सकते हैं पूजा, रेशमा, सुभाशीष? Today is Ganna Puja. It's हाँ, it's sugar 11 today. It's 11 today. Yes, you are right, Pooja. It's 11 today. है ना? Who has joined now? Okay, I think Ankit has joined, or who has joined? हाँ, Ankit has just joined. Okay, okay. So it's 11 today. कैसे बोलेंगे कि कल संडे था और कल छुट्टी थी? Yesterday was Sunday and holiday. Okay, very It good. was Sunday yesterday. Very good, very good, good. All are correct. It's ज़्यादा यूज करेंगे तो बेटर है. It was Sunday yesterday and it was holiday. Very good. कैसे बोलेंगे कल मेरे पास टाइम था? Yesterday, yesterday I have I got I got had time I yesterday. had time. Have का past क्या होता है अंकित? Had. Okay, yesterday I had time. Okay, चलिए कैसे बोलेंगे आज मैं busy हूँ? I am Today- busy. Today I am busy. Busy. Very nice. कैसे बोलेंगे कि मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ? I prepared for puja. I am preparing for preparing for
Puja. वर्शिप और फॉर पूजा बोल सकते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, प्रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे बोलेंगे? मैं कल रात को मूवी देख रहा था। Yesterday I was I was watching watching TV. TV. I was watching a movie yesterday. Very nice, very nice. चलिए कैसे बोलेंगे कि मैं 6 बजे योगा करती हूँ। आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है आज सबके यहाँ, है ना? सबकी नेटवर्क थोड़ा सा वीक आ रहा है। कैसे बोलेंगे? मैं 6 बजे योगा करता हूँ। I do yoga at 6 p.m. 6 o'clock. 6 p.m. I do yoga. Correct. I do yoga at 6 o'clock daily. Okay. How will you say? वो हमेशा लेट आती है। वो हमेशा लेट आती है। She's She always comes late. Very good. She Very good. always late. She always comes late, है ना? आती है ना? She always comes late. अच्छा, अब बोलना है कि वो लेट नहीं आता है। वो लेट नहीं आता है। He He doesn't come late. Very good. Very He good. doesn't come Very late. good. हाँ, ये He भी. doesn't come late. He doesn't come late. Okay. क्या मैं आपको सुनाई दे रही हूँ? Yes, ma'am, you are visible. Yes, अंकित, translate करना है। क्या मैं आपको सुनाई दे रही हूँ? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Very good. Am I audible? क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? Am I Can I? Am I visible? Can I Very good. see the picture? Am I visible? Am I visible? Am I audible? तो आपको बोलना है yes, आप visible हैं और audible हैं। Yes, you are. You are Yes, audible you are and you are visible and visible. and audible. visible. Yes. Okay. कैसे बोलेंगे? क्या आप हर मंडे फास्ट रखते हो? You have passed for her Mondays. ना बेटा, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्या आप, देखिए ध्यान दीजिए, पहले देखिए बहुत इजी होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हिंदी का जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो हमेशा टेंस बताता है। जैसे मैंने पूछा क्या आप, पहली बात तो क्वेश्चन पूछा मैंने, है ना? क्या आप मंडे को फास्ट रखते हो? लास्ट में क्या आ रहा है? रखते हो, रखता है, रखते हो। तो बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि भाई ये तो प्रेजेंट टेंस है। अब मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब बताइए, क्या आप हर मंडे फास्ट रखते हो? Do you keep fast every Monday? वेरी नाइस, Have keep. वेरी गुड। डू यू ऑब्जर्व फास्ट या डू यू कीप फास्ट? दोनों सही है। डू यू ऑब्जर्व फास्ट, और डू यू कीप फास्ट ऑन एवरी मंडे? वेरी नाइस। अच्छा, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? Do you believe in God? Do you Do you believe a Do God? you believe in God? ओके, अब आपको बताना है क्या रेशमा रिस्पॉन्सिबल है? क्या रेशमा रिस्पॉन्सिबल है? Does Reshma responsible? Is सुनिए Reshma is responsible? ना, मैंने बोला क्या रेशमा रिस्पॉन्सिबल है, आहती है थोड़ी ना आया है। क्या रेशमा रिस्पॉन्सिबल है? इज रेशमा रिस्पॉन्सिबल? Is Reshma Yes. responsible? यस, इज रेशमा रिस्पॉन्सिबल, है ना? कोई बात नहीं, जल्दी वो मैंने फ्लो में पूछा ना, तो वो मैं ना ट्विस्ट कर दूंगी टेंस। चलिए कैसे बोलेंगे? मैं आजकल गिटार सीख रही हूँ। मैं आजकल गिटार सीख रही हूँ। Today I am learning Today guitar I am- nowadays. I'm learning guitar nowadays. वेरी गुड, है ना? अंकित क्या बोलेंगे? सुभाशीष, रेशमा, आई एम लर्निंग गिटार नाउडेज। क्या आप आजकल क्लासिकल डांस सीख रहे हैं? क्या आप आजकल क्लासिकल डांस सीख रहे हैं? Are you learning Are you classical dance nowadays? Are you learning classical dance nowadays? वेरी गुड, आर यू लर्निंग क्लासिकल डांस नाउडेज? आपको बोलना है हाँ मैं आजकल भरतनाट्यम सीख रही हूँ।
Yes. Yes, I am Learning Bharatanatyam. learning Bharatanatyam nowadays. वेरी गुड वेरी गुड. तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस था पुराने जो सेंटेंसेस का. अब चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. सो गाइज, why I asked you your hometown, about your hometown, wherever you are from, right? Because the topic of the day is very interesting and one of my favorite topics, right? The topic of the day is my city, my hometown. So guys, you have to learn these vocabularies. I'm gonna give you some sentences that will help you making your presentation organized and effective, right? So let's learn some vocabularies that will help you to give presentation. And the presentation, what is the topic of the presentation? That is my hometown, my city. Like Pooja said, she's from which place did you say? Ratlam. Ratlam. She's from Ratlam. So she will be talking about Ratlam. Manisha ma'am, she will be talking about Dhanbad, right ma'am? Dhanbad, her hometown. Yes, yes. Similarly, whichever place you belong to, you have to describe that. I belong to Bhopal, I will also tell you something about Bhopal, right? So before that, let's learn some vocabularies, है ना? So I'm giving you 2 minutes. क्या होता है? ये जो ब्लॉक दिया हुआ, एक एक्टिविटी करते हैं. लेट्स डू वन एक्टिविटी, राइट? सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत इजी है. इन वर्ड्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है. कुछ नहीं करना है. आई एम गिविंग यू ओनली 2 to 4 minutes. आपको इसको रीड करना है. यू जस्ट हैव टू रीड, है ना? आपको बस रीड करना है. देन आफ्टर रीडिंग आई विल आस्क यू रैंडमली. मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकती हूँ. जैसे मान लो अभी मैं आपको बताती हूँ. अच्छा ये बताओ कि गगनचुंबी इमारतों को क्या बोलते हैं? हाउ टू से गगनचुंबी इमारतें इन इंग्लिश? Sky. Very good. Scrapper. Skyscrapers, right? है ना? तो ऐसे ही मैं रैंडमली पूछूंगी. आई एम गिविंग यू 2 minutes. जल्दी से इसको रीड कर लीजिए. लेट्स रीड. Okay. इसमें से वो सॉक्स निकाल के सॉक्स पहनेंगे. कैसी लग रही है? ये कागज तो भर लगे. देखो अगर वहाँ हल्ला करोगी इतना महंगा दिला दो तो हम नहीं दिलाएंगे. कहीं से 100 रुपए का था. हाँ 100 रुपये का ही दिलाएंगे. अरे ऐसा कहीं. हाँ हम बता रहे हैं. ऐसा कहीं तो हम नहीं जाएंगे. अरे तो नहीं थोड़ा सा तो हम 300-500 रुपये कम देंगे. 300-500 नहीं चाहिए.
Hello. Yes, guys. So may I ask you, Akhil, you are here? Okay. So Akhil, you have to just read the words and I'm going to ask you. Now it's time to ask me. Okay. चलिए, तो ये बताइए कि सस्ते को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्ता. How would you say सस्ता in English? Cheap. Inexpensive. क्या बोलते हैं? Inexpensive. Inexpensive. देखिए, महंगे को बोलते हैं expensive और inexpensive मतलब सस्ता. अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे जंगल वगैरह होते हैं ना, जंगल आपने देखा होगा, बचपन में हम जाते हैं कई बार, तो जंगल देखा होगा, बट कई बार जहां हम रहते हैं वहां के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो एक जंगल जैसा दिखने में लगता है आपको, मतलब Yes, ma'am. बड़ा जंगल, एक छोटा सा जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घना है, वेरी डेंस, उसको क्या बोलते हैं? Like Charimli, my father lives in Charimli. Wild area. See, wild area. Wild area. No, that will not be called wild area. That will be called woods. 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 देखिए, wood and woods में difference है. अगर आप wood में s लगा देंगे तो वो छोटा जंगल होता है. wood मतलब होता है लकड़ी, और उसमें s लगा दोते तो वो होता है जंगल. तो छोटे मोटे जंगल आपको कई बार दिखते हैं आपके घर के पास में, खूब सारे पेड़ पौधे हैं, थोड़ा घना है, छोटा सा तालाब बना हुआ है. दैट इज कॉल्ड वुड्स, यानी छोटा जंगल. ओके, हरियाली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Greenery. ग्रीनरी. ओके, चलिए, गांव वाले जो एरिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? Rural area. वेरी गुड. और जो शहरी वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Urban area. वेरी नाइस. अच्छा, और जो झुग्गी झोपड़ी होती है दैट इज कॉल्ड Slum area. स्लम एरिया. ओके ओके, चलिए. अच्छा, ये बताइए, ऐतिहासिक स्मारक को क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक स्मारक. Historical monument. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक. किले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Fort. फोर्ट. और ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? क्या बोलोगे इसको? कैसल. Castle. है ना? टी यहाँ पर साइलेंट है. कैसल. Castle. कैसल या फोर्ट. ओके ओके ओके, ठीक है. अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर पॉपुलेशन कम है, उसे क्या बोलेंगे? गोवा. नो. नो, ऐसा एरिया जहां पर पॉपुलेशन कम है, कम पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? कम पॉपुलेशन वाला एरिया. लो पॉपुलर एरिया. लो पॉपुलेटेड एरिया बोल सकते हैं. थिनली पॉपुलेटेड एरिया क्या बोलोगे? Thin. थिन. Thinly. थिन. थिनली पॉपुलेटेड एरिया. बट अगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, these are city which are very densely populated, right? They are densely populated cities. तो उन्हें बोलते हैं thickly populated area. Like the city where I am living is not thickly populated. It's average. Neither thickly nor thinly. It's average populated area. My city. And what about your city? You will include that. Okay. Next है मस्जिद. आपके पास मस्जिद, मंदिर वगैरह होते हैं, तो मस्जिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? How will you say मस्जिद? Mosque. This is not called mosque. You will pronounce mosque. क्या बोलते हैं अखिल इसको? Mosque. SQUE. This is the correct pronunciation. Mosque. Okay. चलिए. अच्छा, और बहुत ज्यादा हाई फाई लोग रहते हैं, हाई फाई तरह से लोग रहते हैं वहां पर. दैट एरिया इज कॉल्ड Posh area. पॉश एरिया. Posh area. पॉश है ना, दैट विल बी कॉल्ड पॉश एरिया. ठीक है. और सस्ता को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Inexpensive. Inexpensive. शांत. Quiet. चलिए, मैं आपको एक वर्ड सिखाती हूँ, है ना. लेट मी शो यू वन थिंग, है ना. आप मुझे बताइएगा, है ना, आपको मुझे आंसर देना है, बाद में मैं आंसर दूंगी, है ना. जस्ट गिव मी अ मिनट. है ना. क्वाइट मतलब क्या पढ़ा अभी हमने? शांत. स्पेलिंग क्या थी? QUIET. ठीक है, QUIET. ठीक है. अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, उसका आप ना मुझे प्रोनाउंसिएशन बताना और उसका मीनिंग भी आप बताइएगा, ठीक है. चलिए देखते हैं. एक छोटा सा मतलब टेस्ट है, छोटा सा वर्ड्स वाला, वोकैबुलरी का.
ठीक है। अच्छा, माला मतलब ये जो 11 की जो पूजा होती है जो हम करते हैं, उसमें क्या होता है, तुलसी जो माता होती है और शालिग्राम जो देव भगवान होते हैं, उनकी उनकी शादी होती है ना, शादी होती है। तो शादी Yes, में ma'am. क्या होता है, अब जैसे हम लोग की अभी शादी होती है सब जगह, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं, है ना, हार पहनाते हैं, वरमाला Yes, बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Garland. वरमाला पहनाते हैं ना, वर वधू मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को, है ना, वो पहनाते हैं। तो क्या बोलोगे? हार पहनाना, Garland. गार्लैंड। हाँ, सही बोल रहे हो आप। गार्लैंड मतलब होता है हार, वो जो हम फूलों का जो हार होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गार्लैंड, है ना। और गार्लैंड मतलब हार, और एक दूसरे को हार पहनाना, गार्लैंड ईच अदर। देखो, गार्लैंड मतलब होता है फूलों की माला। और अगर मुझे एज अ वर्ड यूज करना है, मतलब गार्लैंड यहाँ पर नाउन हो गया, ध्यान दीजिए सभी, गार्लैंड मतलब फूलों की माला, है ना, ठीक है। अब मुझे बोलना है फूलों की माला पहनाना, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो फूलों की माला पहनाते हैं, राइट, है ना। सो उसके लिए भी एक सेम ही वर्ड यूज होता है, जैसे दे, जैसे दे मतलब एक सेंटेंस बना रही हूँ, दे गार्लैंड, दे गार्लैंड ईच अदर। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को हार पहना दिया, दे गार्लैंड। Yes, और ma'am. गार्लैंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गार्लैंडेड, दे गार्लैंडेड ईच अदर। तो Each गार्लैंड other. का मतलब फूलों की माला भी होता है अखिल, और फूलों की माला पहनाने को भी बोलते हैं। और अगर आपको दूसरा सेंटेंस यूज करना है तो आप बोल सकते हो टू पुट गार्लैंड अराउंड द नेक। भगवान के गले में माला पहनाते हैं हम, टू पुट। Yes, ma'am. बहुत लंबा हो जाता है सेंटेंस, मैंने आपको सिंपल वे में बताया है ना, बट स्टिल अगर बच्चे पूछते हैं कि मैडम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बताइए मुझे, दूसरा वर्ड अगर नहीं पता, तो टू पुट गार्लैंड अराउंड द नेक, है ना, अराउंड द नेक, है ना, ठीक है। चलिए, ये वर्ड तो मुझे पता है, आज पूछना है ना तो मुझे कुछ वर्ड से याद आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, है ना। चलो एक और, तो जो 11 की जो पूजा होती है, जहां तक मुझे पता है, अभी तो मुझे मतलब बिफोर मैरिज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दीज रिचुअल्स। शादी के पहले हम इतना अवेयर नहीं रहते रिचुअल्स के लिए, बट आफ्टर मैरिज वी गेट टू लर्न मेनी थिंग्स। तो मैंने एक भी चीज देखी कि गठबंधन वर्ड सुना है, शादी होती है ना तो क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं दूल्हा दुल्हन। पहली बात, दूल्हा को क्या बोलते हैं? ग्रूम। ग्रूम, वेरी गुड। दूल्हे को क्या बोलते हैं अखिल? Groom. ग्रूम, ग्रूम, Groom. ग्रूम, है ना। और दुल्हन को क्या बोलते हैं? ब्राइड, राइट। Right. So groom and bride are garlanding each other, एक दूसरे को हार पहना रहे हैं, ठीक है। अब गठबंधन होती है जब हम फेरे लेते हैं, तो जैसे तुलसी माता जो है उनकी और शालिग्राम देव भगवान, उनकी जो आज पूजा होती है 11 में, तो हम गठबंधन उसमें भी करा जाता है, एक रस्म होती है। तो गठबंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ टू से गठबंधन, गांठ बांधना है। Not. नॉट, Not. नॉट, हाँ, वेरी नाइस, नॉट। Tying the knot. Very good, Ankit. Tie the knot. Very nice. Very good. Well done. Tie the knot. है ना? Tie the knot मतलब गठबंधन करना. That's called tie the knot. है ना? चलिए, तो थोड़ी सी vocabulary भी पढ़ ली, मुझे याद आ रहा था। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ words देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था QUIET. क्वाइट का मतलब होता है शांत, है ना, अभी आप लोगों ने बताया, वेरी नाइस, है ना, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है भोपाल एक शांत प्लेस है, ज्यादा चहल पहल नहीं रहती, Bhopal is a क्वाइट प्लेस, quiet area. वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना। अब क्वाइट Quiet. है ना। अब एक और वर्ड देखते हैं, QUIT, इसका मतलब क्या होता है ये बताइएगा। छोड़ देना, quit, छोड़ देना. Quit. छोड़ना. निकल जाना. और ये दूसरा, Stop करना. ये क्वाइट तो मतलब शांत हो गया, ये क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट। तो क्वाइट बोलते हैं कि क्वाइट बोलते हैं? एक्चुअली मैं आपको ना गलत मतलब मैंने आपको सही नहीं बताया, सही है प्रोनाउंसिएशन क्वाइट। क्या बोलते हैं? क्वाइट। Quiet. स्कूल में टीचर बोलती है ना कीप क्वाइट, वो गलत होता है, दैट्स रॉन्ग। कीप क्वाइट,
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है आप लोग देख भी सकते हैं डिक्शनरी में. Quiet. क्वाइट. क्वाइट. इट्स नॉट क्वाइट, इट्स क्वाइट. तो क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? क्वाइट. जैसे हम बोलते हैं कीप क्वाइट. क्लियर है? चलिए. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज क्विट. क्विट मतलब छोड़ना, है ना? पता है ना अखिल? क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ना. ये सबको पता है. अब एक होता है QUIET, उसको तो हम क्वाइट बोलते हैं, कीप क्वाइट. अब इसकी स्पेलिंग है QUIET, बट जो थर्ड वाला वर्ड अगर आप देख रहे हैं, यू कैन सी थर्ड वर्ड गाइस, है ना? वो है QUIET. इसको क्वाइट बोलते हैं. इसको बोलते हैं क्वाइट. कीप क्वाइट वाला होता है क्वाइट, और इसको बोलते हैं क्वाइट. क्वाइट मतलब थोड़ा. मैं काफी अच्छी हूँ, है ना? आई एम क्वाइट वेल. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. मूवी थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है. मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना? मूवी इज Quite interesting. QUIET. I'm sorry, QUIT. I'm really sorry. QUIT. Movie is quite interesting, है ना? तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब होता है थोड़ा. काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा या काफी. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट्स क्वाइट बोरिंग. इट्स क्वाइट इजी, है ना? तो वो होता है क्वाइट, वो होता है कीप क्वाइट. स्पेलिंग इज डिफरेंट. और एक होता है क्विट. क्लियर है? आगे बढ़े, है ना? स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है. एक आध और मिलता जुलता वर्ड है तो मैं जरूर शेयर करूंगी. चलिए तो आगे वापस बढ़ते हैं हम, है ना? तो कुछ हमने वर्ड्स भी सीखे, और भी वर्ड्स मैं वोकैबुलरी शेयर करने वाली हूँ आपसे कुछ देर में. चलिए अब वापस हम अपने होम टाउन वोकैबुलरीज पर आते हैं. लेट्स डू दिस. ओके, ठीक है. तो कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल इजी हैं. अच्छा, जैसे मान लीजिए आप अपनी सिटी के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरी सिटी तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है. तो सुंदर को हम ब्यूटीफुल बोलते हैं, बट रेदर देन यूजिंग ब्यूटीफुल वर्ड यू हैव मेनी अदर वर्ड्स. यू शुड यूज दोज वर्ड्स लाइक lovely, right? That is really lovely place. That's charming place. Beautiful. और एक और होता है spectacular, है ना? लिख लीजिए spectacular. वाओ, मन को लुभा देने वाला. स्पेक्टिकुलर मतलब होता है मन को लुभा देने वाला, मतलब देखकर लगे वाह यार क्या तो सीन दिख रहा है. कई बार आप माउंटेन हिल स्टेशन जाते हैं, कई बार आप बीच पर जाते हैं, या कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं डैम के पास, आपको बड़ा सुंदर दिखता है. कहीं मंदिर, पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा मंदिर है, वहां जाते हैं, दैट यू फाइंड इट रियली ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मन को लुभा देने वाला. यू कैन से स्पेक्टिकुलर, है ना? लेट मी राइट इन द चैट बॉक्स. अभी मैं चैट बॉक्स में लिख सकती हूँ ना, है ना? So let me write in the chat box. You can check there. SPECTACULAR. 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 मन को मोह देने वाला, एकदम देखकर लगे वाओ, वाओ वाली फीलिंग आए, राइट? है ना? ठीक है, ये तो हो गया है ना? उसके अलावा अच्छा, कई बार क्या होता है गांव वगैरह वाले एरिया में आप जाते हैं, जैसे सिटीज वगैरह में भी अगर आप देखो तो रोड स्मूथ होते हैं. नॉट एवरीवेयर, नॉट इन एवरी एरिया, बट स्मूथ होते हैं कंपैरेटिवली. गांव वगैरह में जाओगे या जहां पर रोड खराब होने लगती है तो बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं हमको. कई बार होता है ना रोड पे बड़े बड़े गड्ढे आ गए हैं, राइट? उन बड़े बड़े गड्ढों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल. बिग होल. होल तो बोल सकते हैं, बिग होल भी बोल सकते हैं, बट फिर भी एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर वर्ड होता है पोथो होल्स. लेट मी राइट इन द चैट बॉक्स. पोथो होल्स. POTHOLES. 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 I'm sorry. POTHOHOLES. Potholes, है ना? एक बार हम चेक भी कर लेंगे, क्रॉस चेक, स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना? Potholes, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, that's called potholes, है ना? ठीक है. और नॉइजी तो आपको पता है, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है ना? ठीक है. ये थे कुछ कॉमन वर्ड्स. तो ये वर्ड्स आप ना यूज कीजिए अपनी सिटी के बारे में. अच्छा, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस प्लेस में आप रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कैसा एरिया है? जैसे मान लीजिए अगर आप पहाड़ी वाले एरिया में रहते हैं तो दैट्स कॉल्ड माय प्लेस इज नियर हिल स्टेशन. अगर हिल स्टेशन है, देयर आर माउंटेन्स, पहाड़ हैं. अच्छा, अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर समुंदर है, समुंदर के पास में अगर आप रह रहे हैं तो उसको आप बोल सकते हो कि मैं कोस्ट लाइन एरिया में रहती हूँ. जैसे बॉम्बे आप देखें तो वहां समुद्र तट वगैरह है, राइट? तो ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन. समुद्र तट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
कोस्ट लाइन, Coastline. है ना। और रेगिस्तान वगैरह है जैसे, तो डेजर्ट क्या बोलते हैं? डेजर्ट। Desert. डेजर्ट क्या बोलते हैं? डेजर्ट। Desert. एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, लेट मी शेयर, है ना। चलिए एक और नया वर्ड है, मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए। एक होता है DESERT, डेजर्ट, है ना। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, सैंड वगैरह होता है जहाँ पर, सैंड एरिया। और एक होता है DESSE, डिजर्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैम एक और Desert. था, वो स्वीट्स के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंकित। स्वीट डिश को क्या बोलते हैं? डिजर्ट। एक बार वो बताया था, पूजा ने बताया था। डिजर्ट मीन्स होता है स्वीट डिश, उसमें एस एक और आ जाता है, डिजर्ट। प्रोनाउंसिएशन इज डिजर्ट, स्वीट डिश। और जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, डेजर्ट एंड डिजर्ट, स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, और मीनिंग भी अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्ड्स, आई होप कि आप इस वर्ड को, इन वर्ड्स को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, प्रसिद्ध को क्या बोलते हैं? जैसे आगरा जो है, आगरा ताजमहल के लिए बहुत फेमस है ना। फेमस, आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल, राइट। Popular. पॉपुलर, वेरी नाइस, है ना। तो फेमस, पॉपुलर बोल सकते हैं। पर्यटन मतलब टूरिस्टी, पर्यटन होता है ना, जो दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। पॉलिटेड आपको पता है, प्रदूषित, टूरिस्ट वाले जगह। dirty, हाँ, यस, है ना। ठीक है। अब आप जिस शहर में रहते हैं वहां कौन सी लैंग्वेज चलती है? जैसे हमारे यहाँ हिंदी चल रही है, हिंदी लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी लैंग्वेज चलेगी, गुजरात जाएंगे गुजराती चलेगी। बट एक और होता है बोली। मैं बिहार भोजपुरी। हाँ हाँ, बिहार में कौन सी चलती है? भोजपुरी, है ना, और बिहारी। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, कहीं कहीं पर क्या होता है, छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं वहां बोली बोली जाती है। बोली, बोली और भाषा में क्या डिफरेंस Yes, ma'am. है ना, ये डिफरेंस होता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, पहले मैं यहाँ की बात करती हूँ। मध्य प्रदेश में जो भाषा, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, लोग उर्दू यूज भी करते हैं, लोग हिंदी भी यूज करते हैं, लोग इंग्लिश भी यूज करते हैं, है ना। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 लैंग्वेज जैसे हो गई है मेन। बट अगर आप छोटे छोटे एरियाज में जाएंगे, गांव वगैरह ऐसे प्लेसेस में जाएंगे, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक बोली बोली जाती है। बोली भी एक तरह की भाषा है, बट वो बाउंडेड Yes, होती ma'am. है, थोड़ी सी बाउंडेड होती है। वो एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में बोली जाती है। जैसे एमपी में एक बोली बहुत ही मशहूर है, बुंदेली। बुंदेली जो है वो बोली है ना, एमपी में। तो बोली को इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट। क्या बोलते हैं बोली को इंग्लिश में? यू कैन सी हियर, डायलेक्ट, Dialect. है ना। है ना। मारवाड़ी ना बोली होती है मेरे ख्याल से, मारवाड़ी भाषा नहीं होती, मारवाड़ी बोली होती है, राइट। सो जो पर्टिकुलर स्मॉल एरियाज में बोली जाती है ना। सो डायलेक्ट मतलब होता है बोली, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां कोई बोली है स्पेशल, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने। मैम मराठी भी बोली है। नहीं, मराठी बोली नहीं है बेटा, मराठी तो पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है। जो ज्यादा एरिया में बोली जाती है वो लैंग्वेज होती है। बड़े एरियाज में मराठी तो लैंग्वेज होगी बेटा, है ना। जैसे बुंदेली हो गई, मारवाड़ी हो गई। वैशाली जी। यस मैम वैशाली जिला में ना अलग ही लैंग्वेज चलता है, कैसे मतलब चलती है? एक अलग ही बोली चलता है। हाँ, तो वो बोली हो गई। मैम बोली उसमें ना हर एक वर्ड में ना लगता है, जैसे वहां से आ गए ना, ऐसे करके बोलता है लोग। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो वो बोली हुई ना, वो लैंग्वेज नहीं होगी। मैम वहाँ पे नानी घर इसलिए। अच्छा, ओके ओके ओके, सुनने में अच्छी लगी वैसे। जब आपने बोला ना तो अच्छा लगा। चलिए, अब देखिए, आप अपने शहर के बारे में तारीफ करते हैं। आपको हो सकता है शहर कुछ चीजों के लिए बदनाम हो, जैसे दिल्ली में, दिल्ली अच्छी सिटी है, इट्स रियली बिजी सिटी, बट थोड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वहां के जो ऐसा मैंने सुना है कि नाइट में आप ज्यादा देर जा नहीं सकते, मतलब ऐसा सुना है, मतलब इट्स नॉट दैट मच सेफ। अगर आप बॉम्बे जैसे सिटी की बात करें तो रात को क्वाइट सेफ, इट्स क्वाइट सेफर, है ना, फॉर गर्ल्स। बॉम्बे और अदर पुणे, महाराष्ट्र में देखा है। माय सिस्टर आल्सो वेंट देयर फॉर हर स्टडीज, फॉर हर अदर थिंग्स, राइट। तो शी ऑल्सो फाउंड आउट अ लिटिल सेफर देन दिल्ली। तो कोई भी ऐसा पॉइंट आपको अपनी सिटी के बारे में लगता है कि इट्स नॉट ये चीज थोड़ी सी मुझे लगती है ड्रॉबैक है,
तो आप बोल सकते हो इनफेमस। इनफेमस मतलब बदनाम, किसी चीज के लिए अगर कोई बदनाम है, अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इनफेमस मतलब क्या होता है? बदनाम, है ना? बदनाम। क्लियर है? और स्मोकी मतलब धुआंधार। दिल्ली वगैरह में आप जाएं तो ठंड के समय क्या होता है? काफी स्मोकी आपको दिखेगा, मतलब हाँ, फॉग छपरा फॉग नजर आएगा, है ना? ठीक है, चलिए, तो ये थे वोकैबुलरीज। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सेंटेंसेस। बहुत सिंपल सेंटेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉर्नर में कुछ फ्रेजेस दिख रहे हैं। यू कैन सी सम फ्रेजेस हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो वेरी सिंपल। जब आप अपनी सिटी की बात, यस पूजा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज टेल मी। चटोरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चटोरे? फूडी, इट्स वेरी सिंपल, फूडी। और एक और वर्ड है, फूडी। एक और वर्ड है, फूडी के अलावा एक और वर्ड है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। फूडी, फूडी भी बोलेंगे। और देयर इज वन मोर वर्ड, आई हैव वन मोर वर्ड, लेट मी जस्ट चेक दैट ना। बहुत ज्यादा, मतलब कोई खाने के लिए एकदम क्रेजी है ना, मैम जी से होता है, जी से होता फूडोहॉलिक भी बोल सकते हैं, फूडोहॉलिक, है। मैम वो जी से होता है। फूड हॉलिक। फूडोहॉलिक। मैम एक जी से होता है, मैम जो ज्यादा खाता है। जो ज्यादा खाता है वो मैम उसको कुछ अजीब टाइप से जी से होता है, वो हम वन वर्ड से गैरुलस, ट्यूशन में पढ़े थे। गैरुलस, गैरुलस। मैम शायद मैं भूल गए। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं चेक, मुझे भी ऐसे याद आ रहा है, बट आई विल नॉट कंफर्म, है ना, लेट मी कंफर्म दैट। फिलहाल फूडोहॉलिक एंड फूडी, है ना। अभी और मैं वर्ड्स बताती हूँ, एक वर्ड है मुझे भी याद नहीं आ रहा, इट्स नॉट क्लिकिंग इन माय माइंड। चलिए, तो जब आप सिटी की बात कर रहे हो तो यू कैन कम विथ मेनी पॉइंट्स। इफ यू आर कमिंग विथ सम पॉइंट्स इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। जैसे देखते हैं, ग्लटन, ग्लटन, ग्लटन। मैम ग्लटन। you are right, you are right, thank you so much, thank you so much Akhil. Glutton, thank you so much. GLUTTON, thank you. GLUTTON, है ना? यस मैम। Yes, I can see Pegambar sir has also joined, very nice. So I have 9 students today. 8 Akhil hai, Manisha ma'am, Pooja, Madhulika, okay. Yes, Ankit is, Bhumika bhi hai, Pegambar sir hai, Subhashish, okay. 8 students. हाँ, तो glutton. Let me write in the chat box. Yes, you are right. Thank you so much, Akhil. है ना? GLUTTON. GLU, welcome. Glutton. GLUTTON, glutton. Glutton means बहुत मतलब खाने के लिए क्रेजी है। हम लालची नहीं बोल सकते, क्योंकि लालची वर्ड तो हम बहुत सी चीजों के लिए यूज करते हैं, बट जो खाने के लिए क्रेजी है, that's called glutton. बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक और वर्ड था, एक और वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, 2 वर्ड थे मेरे पास, बट थैंक यू फॉर दिस वर्ड। चलिए, तो लेट्स लर्न सम फ्रेजेस। चलिए, so whenever you are giving presentation, first of all you will just greet everybody. आप greet करेंगे, so good evening one and all present here. I'm Shalini. I'm going to tell you something about my city. I'm going to tell you my hometown, that is Bhopal. So everyone, I belong to Bhopal. I'm from Bhopal. I'm from City of Lakes, Bhopal, right? तो इस तरह से आप पहला अपना वाक्य स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन का। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी रहेगी। कई बार क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि स्पीच चल रही है, स्टेज पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और अचानक से कोई आके कुछ बोल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, क्योंकि 10 मिनट तक हमें समझ में नहीं आता कि बंदा बोल क्या रहा है, किस टॉपिक पर बात कर रहा है।